کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تالر اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ شرکا کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ خلیج تعاون تنظیم نے جنوبی ایشیا میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، پاکستان اور بھارت فوری مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ جاسم نے کہا کہ اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا جائے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے دوست ممالک متحرک ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سینئر پاکستانی حکام سے علاقائی صورتحال پر بات کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق اسی ہفتے ایرانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ بھی کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق A کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا 5 مئی کو ہونے والا اجلاس موجودہ اسمبلی کا 16واں اجلاس ہوگا۔ اب بات کریں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایک روزہ سرکاری دورہ عمان کی مسقط پہنچ چکے ہیں۔ سیکریٹری داخلہ خالد بن ہلال بن سعود البسویدی سے پاکستان کے سفیر اور دیگر شخصیات نے وفاقی وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی اور مسقط کے سیکریٹری داخلہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ خالد بن ہلال نے کہا کہ عمان آمد پر آپ کو دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عمان کے ساتھ انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے ضمن میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عمان حکومت کو پاکستانی موقف سے آگاہ کریں گے۔ لائن آف کنٹرول سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کی قلعی کھل گئی۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی دعووں کی حقیقت دکھانے کے لیے مقامی اور عالمی میڈیا کو دور کروا دیا۔ وزارت اطلاعات کا آج بھی پاکستانی اور عالمی میڈیا کے لیے LOC کا دورہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مقصد بھارت کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھارت پاکستان میں نام نہاد اور خیالی دہشت گرد کیمپس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ ہر طرح کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے کوئی خط اور پارسل بھی وہ موصول نہیں کرے گا۔ پاکستانی جھنڈے کا حامل کوئی جہاز کسی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ قائم ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سکول ایجوکیشن کے موجودہ اور مجوزہ پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ پنجاب میں 11,000 سے زائد سکولوں کی آؤٹ سورسنگ مکمل ہو چکی ہے۔ بچوں کی انرولمنٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ مریم نواز نے وزیر تعلیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ پر شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ
पंजाब ने 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में क्लासरूम्स बनाने और खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत का हुक्म दिया। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर किया गया। मरीम नवाज ने हर जिले में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत दीगर सहूलियात नागुज़ीर हैं। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तंसीबात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि भारत का झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने की बात की थी। राना मशहूद खान का कहना था कि कश्मीर में 75 साल से अवाम के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है। भारत में तमाम अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। कश्मीर पर सौदेबाजी की गई थी, अब ये मुकदमा हम लड़ेंगे। कश्मीर को इसका स्टेटस वापस दिलाने का वक्त है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। मोदी की 7 लाख फौज कहाँ थी जब पहलगाम में ये हमला हुआ? वाक़े की FIR 10 मिनट बाद दर्ज हुई, लेकिन कोई रियासती इदारा वहां नहीं पहुंचा। उनका यह भी कहना था कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, आबी जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबी मुआहिदों पर दुनिया साथ खड़ी ना हुई तो हम अपना हक लेना जानते हैं। भारत ने अगर आबी जारियत की तो अंदर घुस कर उन्हें मारेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों को ब्रीफिंग बानी PTI के बगैर अधूरी करार दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने एक बयान में कहा, सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग बानी PTI के बगैर अधूरी है। उन्होंने कहा कि PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और मुल्क की सलामती के किसी भी इजलास में बानी PTI की शिरकत वक्त की जरूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली मुकदमात खत्म करके बानी PTI को मुशावरत में शामिल किया जाए। जाली हुकूमत ने फसादियत के जरिए कौम को तकसीम कर रखा है। और अब खबर यह है कि रावलपिंडी में एक मरतबा फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खानपुर डैम में सिर्फ 1 माह का पानी का जखीरा रह गया। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक रावल डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 3 माह का रह गया है। पानी की तलब और रसद शदीद मुतासिर है। कम बारिशों के बायस ज़ेरे जमीन पानी की सतह में कोई बेहतरी नहीं आई। MD वासा का मजीद कहना है कि बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। MD वासा ने शहरियों से अपील की है कि पानी की बचत करें और वासा के साथ ताउन करें। आगे बढ़ते हुए अहम खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स सरगर्म हो गए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर शहर में मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों से सख्ती से निपटने की हिदायत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, DC लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इस्तेकाम रखा गया है और सरकारी नरखानामा की खिलाफ वर्जी और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मैदान भी जो है वो सरगर्म है और सरकारी रेट लिस्ट का नफाज यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशा भी हैं। और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा सरकारी रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी पर 10 वार्निंग जारी कर दी गई हैं। और प्याज, टमाटर, भिंडी, खीरा, गोभी, अरबी, हरी मिर्च, भिंडी की कीमतों को भी काबू पाया जा रहा है। इसके अलावा मेथी, गाजर, शलजम, पालक, शिमला मिर्च, नींबू, लहसुन की कीमतों में भी कोई इजाफा नहीं महसूस किया गया। और सेब, केले, अमरूद, अनार, किन्नू, मौसमी, खजूर, खरबूजे की कीमतें भी इस्तेकाम रखा गया है। जो जिले इंतजामिया है वो सरकारी रेट लिस्ट नाफिज करके शहरियों के हकूक की हिफाजत कर रही है। और DC सैयद मूसा रजा का कहना है कि ज्यादा कीमत वसूल करने वालों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शहरी डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और शहरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डिप्टी कमिश्नर से राब्ता कर सकते हैं। और सैयद मूसा रजा का इस सवाल में कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट की तामील यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, आग और खतरात के सामने डट कर खड़े होने वाले जानिसार फायर फाइटर्स को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फायर फाइटर्स डे पर
फाइटर डे पर पैगाम, कहा घड़ी में जहां सब पीछे हटते हैं वहीं पे ये मुहाफिज आग में कूदकर इंसानियत की खिदमत का अहद निभाते हैं। फायर फाइटर्स महज आग बुझाने वाले नहीं बल्कि आजमाइश की घड़ी में रोशनी बनकर सामने आते हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1112 फायर फाइटर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए हैं। सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए रेस्क्यू 1112 फायर फाइटर को जदीद तरीन आलात मुहैया किए गए हैं। फायर फाइटर समेत तमाम रेस्क्यू एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए पुरआज़्म हैं। रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन करके मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से जायद घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और KMS का कहना है कि काबिज भारतीय फौज ने काले कानून के तहत पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात कब्जे में ले लिए। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज के छापों, लूटमार मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा ले और तनाज़ा कश्मीर हल कराए। यहाँ आपको बताएं कि लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब हो गया। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। मोदी का दिफा करती एंकर पर्सन को भी साम सूंघ गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील करते सुना गया, जिससे मोदी का घिनौना चेहरा भारत समेत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार का अपना हलाक फौजी जवानों के नाम पर सियासत का गंदा खेल मंजर आम पर आ चुका है। मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। सियासी तज्जियाकार ने कहा कि टॉक शो में मौजूद एंकर और वुज़रा के चेहरों पर सवालिया निशान देखने लायक थे। इंतहा पसंद हिंदुओं की जनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद और इंतशार बढ़ने लगा। नैनीताल ने इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा और लूटमार की। इंतहा पसंद हिंदुओं की दरिंदगी के खिलाफ भारतीय शहरी शाहिला नगी हुजूम के सामने डट गई। शाहिला को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियां दी गई, मगर वो बहादुरी से उन शरपसंदों के खिलाफ डट गई। शाहिला ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश, कराची में भी बादल बरसने को तैयार। गोलार्ची में रात भर जारी रहने वाले मिट्टी के तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद, दादू, मिट्यारी समेत ज़ेरे ज़मीन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से मुतादिद इलाकों में दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि शहरी घरों में महसूल होकर रह गए। तूफानी हवाओं के बायस कई दही इलाकों में खंबे और छतें गिरने की इतलात भी मौसूल हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, पंजाब, KP और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद बारिशों का इम्कान है। उधर कराची के बासियों के लिए भी बारिश की नवीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुमकिन बारिश के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके।